Now, student, we will see our question number 23. In this question, you can see that the given information we have here, that is calculation of a cash flow from a investing activity we have to calculate, and the amounts on the date 31st March 2014 and it is 31st March 2013. That means it is your opening balance and this will be of your closing date. It is clear. Now here we have a given adjustments, half of the non-current investment, that means held in the beginning of a year was sold at 15%. इसका मतलब beginning of the year 80,000 का आधा, that means of your half of the 80,000. So it is half of your 80,000 it is equals to 40,000. 40,000 का हमको मिल रहा है half of the current non-current investment held in beginning of a year were sold. बेच दिया हमने 15% प्रॉफिट पे बेचा, तो 15×4 = 6,000 प्रॉफिट पर हमने बेच दिया. इट इज़ क्लियर. तो ये सॉरी 4 लाख, इट इज़ 80, इट इज़ 4 लाख, तो इट विल बी 60,000 प्रॉफिट पे बेचा है. ओके. डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट वॉज ऑलरेडी गिवन, 1,60,000 इज गिवन. इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट. ओके. डिविडेंड रिसीव ऑन नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट. क्वेश्चन इज वेरी इजी. रेंट रिसीव. सो सम इन्फॉर्मेशन हियर वी हैव. द गिवन इन्फॉर्मेशन इज वेरी इजी. We will go for the, you can see here I have already drawn the format to save the time. So proceed for the sale of non-current assets. We will see. First of all, I am going to write PROCEEDS, proceed from FROM, from sale of SALE, sale of your non-current assets, your non-current CURRENT, current ASSETS assets. It is clear. And it is given us proceed of sale of non-current assets. You can see सेल ऑफ नॉन करेंट एसेट्स में हमारे को सेल नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट दिया हुआ था, जो मैंने अभी कैलकुलेट करके बताया था. सो आई एम गोइंग टू मेक अ स्टार टू कैलकुलेट एट द डाउन. सो यू कैन सी हियर दैट सेल ऑफ अ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट या नॉन करेंट एसेट्स जो भी हमारे पास हैं, इन्वेस्टमेंट INVESTMENTS investment. Actually I have written it asset. So it is note number 1. It is your SALE, sale of your non-current CURRENT current investment, INVESTMENT investment. It is clear. सो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में उसने हमको इन्फॉर्मेशन दी थी हाफ ऑफ योर अमाउंट रुपीज़, दैट इज़ 8,000 एट द बिगनिंग बोला था उसने. एट द ओपनिंग ईयर, ओपनिंग में जो भी अमाउंट था हाफ का, दैट इज़ ऑफ योर 4 लाख. 4 लाख हमारे हो गए थे. और इस 4 लाख रुपए के ऊपर, दैट मीन्स इसके ऊपर, इन 4 लाख के इन्वेस्टमेंट को तो वो बेच रहा था, लेकिन इसके ऊपर उसने क्या किया, 15% प्रॉफिट मिल गया. सो PROFIT प्रॉफिट. तो 4 लाख का 15% हम निकालेंगे, 4 लाख रुपए का इंटू 15%. सो इट इज़ 15×4 = 60. ये हो गया आपका 60,000 रुपीज़. सो यू कैन सी हियर 4,60,000 रुपये आपके पास आ गए, जो आपने सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट से, जिसमें 4 लाख का इन्वेस्टमेंट था, 60,000 प्रॉफिट था. इट इज़ क्लियर. सो ये सेल प्रोसीड ऑफ इन्वेस्टमेंट था, 4,60,000 आपने बेच दिया. ये हो गया आपका नोट नंबर 1. आफ्टर दैट यू कैन सी परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट हम देखेंगे. PURCHASE, परचेज ऑफ योर नॉन करेंट, CURRENT करेंट इन्वेस्टमेंट, INVESTMENTS इन्वेस्टमेंट. अब इसके लिए हम लोग क्या कर देते हैं, स्टार नंबर 2 या नोट नंबर 2. सो हियर आई एम गोइंग टू ड्रॉ नोट नंबर 2. सो फॉर दिस वी हैव टू गो फॉर अ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से. इट इज़ क्लियर. सो सी, सो आई हैव ड्रॉन द फिगर. सो हियर you can see whatever the, by we will write the closing stock, closing balance here, opening balance here, whatever the amount we are going to get here. So like that. So here first of all, do you see here the balance, BALANCE, balance brought down. You can see the opening balance. It is given at the beginning of the year, it was of your investment was of your 8 lakh rupees. It is clear. And at the end of the year, the investment balance we have BALANCE balance is given, that is our carried down balance. It is of your
10 lakhs I think, हाँ 10 lakhs it is our 10 lakhs, it is clear. And between the year what we have sold, बैंक से हमको मिल गया, हमने बेच दिया था, that is of your account. So ये स्टार नंबर 1 I am going to put at the top. ये देखिए, ये बेचा था हमने 4,60,000 रुपये का हमने बेच दिया था. तो एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट तो हमने 4 लाख का ही बेचा था, 60,000 हमारा प्रॉफिट का पार्ट था. तो प्रॉफिट का पार्ट हमेशा यहाँ लिख देते हैं. तो टू प्रॉफिट एंड PROFIT, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन एज ए सेल ऑफ योर इन्वेस्टमेंट IN. 60,000 रुपये का हमको प्रॉफिट हुआ था, ये देखिए लिख दिया. अब हमारे पास और कोई अमाउंट नहीं है, हम इसको टोटल कर देते हैं. ये हो गया 14,60,000 बेटा जी, 14,60,000. नाउ वी विल राइट दी 14,16,000 हेयर, 60,000 हेयर. नाउ वी विल कैलकुलेट द बैलेंसिंग फिगर. सो जो भी बचने वाला है हमको BANK बैंक, इसका मतलब जो ओपनिंग में हमने खरीदा था परचेज अमाउंट हमको पता चल जाएगा, PURCHASE परचेज. और ये कौन सा फिगर होगा बेटा, BALANCING बैलेंसिंग, FIGURE फिगर, बैलेंसिंग फिगर होगा. तो ये ऑब्वियसली 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6 लाख, 6 lakh rupees will be there. It is your 6 lakh rupees. It is clear. So here we can easily write your 6 lakh rupees is your purchase of non-current investment. After that we will see purchase of fixed asset is also there. PURCHASE purchase of your FIXED fixed asset, परसेट ऑफ फिक्स ASSETS एसेट्स. ओके, तो इसके लिए हम लोग परसेट ऑफ फिक्स एसेट के लिए हम लोग फिक्स एसेट अकाउंट बना लेते हैं. लेट्स सी, आई एम गोइंग टू पॉज टू ड्रॉ द वीडियो टू सेव द MBs. आई हैव ड्रॉन द फॉर्मेट. नाउ यू सी हियर ऑल्सो वी विल राइट ओपनिंग में बैलेंस जो भी था हमारे पास, टू योर BALANCE बैलेंस. देखिए फिक्स एसेट में ओपनिंग में कितना था हमारे पास, 15 लाख रुपए था. सो ये ब्रॉड डाउन वाला बैलेंस था हमारे पास 15 lakhs का. उसी के बाजू में ठीक हम क्लोजिंग वाला लिख लेते हैं, है ना. दैट इज ऑफ योर बाय बैलेंस, BALANCE बैलेंस. वैसे तो इसको लास्ट में लिखना चाहिए, बट आई एम गोइंग टू टेल यू इट इज़ ऑफ योर 18 लाख, 18,20,000. अब आप ये देखिए कोई डेप्रिशिएटिव पार्ट है एसेट्स में. यस, बाय डेप्रिशिएशन एसेट्स में हमारे पास DEP RECIA TION डेप्रिशिएशन दिया हुआ है. डेप्रिशिएशन दिया 1,60,000. अब आप देखिए कि क्या क्वेश्चन में कहीं दिया हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है, सेल हुई है एसेट या परचेज हुई है, मतलब सेल से हमको प्रॉफिट या लॉस हुआ है. तो हमने एसेट कहीं बेचा ही नहीं है. जब एसेट नहीं बेचा इसका मतलब ना लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा. इसका मतलब हम यहाँ पर क्लोज कर देते हैं. तो ये हो जाएगा 19, 60, 70, 80, 19,80,000. सो इट इज़ योर 19,80,000 वी विल हैव हेयर. The same figure we will note down this side, that is of your 19,80,000. It is clear. Now at the top we will put the balancing figure. और balancing मतलब बैंक में जब खरीदा था, एसेट खरीदा था, तब उसको क्या बोलेंगे, परचेज, PURCHASE परचेज. और ये कौन सा फिगर होगा, BALANCING बैलेंसिंग आपका फिगर होगा. तो बैलेंसिंग फिगर देख लेते हैं. 15,80 तो 80 तो आना ही है. 15, 16, 17, 18, 19, 4 लाख और आ जाएगा. तो ये हो जाएगा 4,80,000. सो इट इज़ ऑफ योर 4,80,000. सो वी विल राइट हियर 4,80,000. बेटा जी ये इजी है, आप अगर कंटिन्यू करोगे तो समझ में आएगा. कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें, बट यू हैव टू बी कंटिन्यू विद द क्वेश्चंस. इट इज़ क्लियर. नाउ वी विल सी इंटरेस्ट रिसीव. बहुत ईजी सा था. अब INTEREST इंटरेस्ट, RECEIVED रिसीव्ड. इंटरेस्ट रिसीव देखिए 50,000. इट इज़ क्लियरली गिवन 50,000 का रिसीव हुआ. देन डिविडेंड भी रिसीव हो गया, DIVIDEND डिविडेंड. RECEIVED रिसीव डिविडेंड. हाउ मच रिसीव्ड, डिविडेंड इज रिसीव्ड फॉर 20,000. इट इज़ क्लियर. नाउ रेंट रिसीव्ड, RENT रेंट, RECEIVED रिसीव्ड. रेंट रिसीव्ड इज ऑफ योर 25,000. सो यू कैन सी हियर. सो वॉट एवर द अमाउंट इज पेड, दिस वॉज योर परचेज. परचेज का अमाउंट नेगेटिव होगा क्योंकि कैश आउटफ्लो हुआ. देन दिस इज अमाउंट इज ऑल्सो नेगेटिव. नेगेटिव पॉजिटिव इफ वी विल कैलकुलेट, 6 में से 6 और 10 80, 10 80 में से 4 60 और 4 5 लाख. तो ये चला गया बेटा. 5 लाख में 55 बचा हमारे पास. तो इसका मतलब 5,25,000 का हमारे पास आउटफ्लो निकल रहा है जो हमने खरीदा. सो यहाँ पर नेट कैश, यू कैन राइट नेट, यू कैश
used in investing, 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 activities. It is clear. Now you can note it down.